آئیں اب ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں۔ نئے سال کے موقع پر آج ہم بائبل مقدس میں سے نجات کے بارے میں سیکھیں گے، اور آج کے پیغام کا عنوان ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح اور زکائی کی ملاقات پر بائبل مقدس میں سے غور کریں گے۔ میرے ساتھ کھولیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 19 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 10 ہم کلام میں سے پڑھیں گے۔ لوکا 19:1 تا 10 خداوند خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا، وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار کے شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کلام پاک کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا نے مہربانی کر کے اور ترس کھا کر ہماری زندگیوں میں ایک اور نیا سال بخش دیا ہے، اور اس نئے سال میں اگر کوئی ایک سب سے بڑی برکت ہم اپنی زندگیوں میں پا سکتے ہیں
یا اگر ہم نے پہلے سے یہ برکت پا لی ہے تو اس میں قائم رہ سکتے ہیں، تو وہ برکت ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے نجات کی برکت۔ یہ اقتباس جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ کی ایک گنہگار مصول لینے والوں کے سردار اور دولت مند آدمی زکائی سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ زکائی ملک اسرائیل کے شہر یریحو میں رہتا تھا۔ یریحو کا شہر ایک بارڈر سٹی، ایک سرحدی علاقہ تھا، اور یہ شہر ملک اسرائیل کے دولت مند ترین شہروں میں سے ایک تھا، اور صوبہ یہودیہ کے زرخیز ترین علاقوں میں سے بھی ایک تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ عام طور پر خوشحال تھے۔ یہاں پر کئی دولت مند کاہن خاندان اور دیگر خوشحال گھرانے آباد تھے۔ اس سبب سے بارڈر سٹی، سرحدی شہر ہونے کی وجہ سے اور زرعی اعتبار سے زرخیز ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹیکس اکٹھا کرنا، محصول لینا لازمی بھی تھا اور فائدہ مند بھی تھا۔ اور زکائی جو اس شہر کا ایک دولت مند باشندہ ہے، اس کا کاروبار یہی تھا کہ رومی بادشاہت کے لیے یہودی لوگوں سے جو یریحو میں رہتے ہیں محصول یعنی ٹیکس اکٹھا کرے۔ یاد رکھیے کہ رومی بادشاہت نے جو اپنے زمانے کی سپر پاور تھی، اپنی فوج کے ذریعے سے 63 قبل از مسیح میں، یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 63 سال پہلے ملک اسرائیل پر قبضہ کر لیا۔ خدا کے لوگ اپنے ہی ملک اور اپنی ہی زمین میں ایک بت پرست قوم اور حکومت کے غلام اور ماتحت بن گئے۔ رومی فوجیں اسرائیل کی سڑکوں، شہروں اور دیہاتوں میں دندناتی پھرتی اور یہودیوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے محصول لینے والے یعنی ٹیکس جمع کرنے والے ٹیکس کلیکٹر مقرر کیے۔ اب یہ آدمی زکائی جس کا ذکر یہاں ہم پڑھتے ہیں، یہ محض محصول لینے والا یعنی ٹیکس کلیکٹر نہیں تھا، بلکہ یہ محصول لینے والوں کا سردار، یہ ایک چیف ٹیکس کلیکٹر تھا۔ اور یاد رکھیے کہ یہودی لوگ اپنے ہی لوگوں میں سے ان آدمیوں سے نفرت کرتے جو رومی سلطنت کے ملازم بن کر غالب اور غاصب
بادشاہت کی طرف سے اپنی ہی قوم کے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر کے باہر والوں کو جو قابض ہو گئے ہیں اور بت پرست بھی ہیں ان کو پیسہ جمع کراتے. اور یہ محصول لینے والے نہ صرف یہ کہ محصول لینے کے عوض تنخواہ لیتے قوم اسرائیل کے دشمنوں سے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ زیادتی بھی کرتے، دھوکہ بھی دیتے. جتنا ٹیکس، جتنی شرح، جتنی پرسنٹیج مقرر کی گئی تھی یہ اس سے زیادہ لیتے. یوں یہ اپنے ہی معاشرے میں اپنے ہی لوگوں سے نفرت کا سامنا کرتے. زکائی ایسا ہی ایک آدمی ہے جو بت پرست سلطنت روم کا ملازم ہے، اپنے ہی یہودی لوگوں سے ٹیکس جمع کر کے ان کو جمع کراتا ہے اور پھر جتنا مقرر کیا گیا ہے اس سے زیادہ لیتا ہے. غریبوں پر ظلم کرتا، ان کو لوٹتا اور دولت مندوں کو دغا دیتا ہے. لیکن اس آدمی کو جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس رتبہ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس شہرت ہے اور بدنامی بھی ہے، اس آدمی کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ ہونے کے باوجود ایک شے نہیں ہے، اور وہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نجات. جب اسے پتا چلتا ہے کہ یسوع نام ایک نبی، ایک معجزے کرنے والا زور آور مرد خدا اور شریعت کا ایک استاد، ایک ربی یریحو میں داخل ہو گیا ہے، تو یہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے معجزات اور اس کی پر اثر اور با اختیار تعلیم کو سننے کے دیوانوں کی وجہ سے ایک بھیڑ ہے، ایک ہجوم ہے، ایک رش ہے جس نے یسوع مسیح کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور زکائی اسے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ او دا قد جڑا نا او چھوٹا ہے، نکاوے ہے، او نکا جا ہے، پیسے دے معاملے چ بڑا وڈا تے قد دے معاملے چ نکا ہے. اس زمانے میں اگر کسی شخص کا قد 5 فٹ سے کم ہوتا تو وہ چھوٹا تصور کیا جاتا، اور اس دور میں جن مردوں کا قد 5 فٹ سے اوپر ہوتا اور وہ لمبے ہوتے، لوگ ان کو توجہ دیتے. لوگ بعض اوقات ان کے قد اور ان کی جوانی کی وجہ سے ان کا رعب بھی اپنے اوپر محسوس کرتے. زکائی قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے مگر رتبے اور دولت کے اعتبار سے بڑا ہے. لیکن اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش، مسیح کی جانب کشش، خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی آرزو،
यीशु मसीह के चेहरा मुबारक का दीदार करने का तजस्सुस इस कदर ज्यादा है कि इसने अपने रुतबे, अपनी दौलत और अपने नाम की परवाह नहीं की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये वहां पर गूलर के एक दरख्त पर चढ़ गया। उसका ये फेल, उसका ये काम यहूदी सकाफत में बाअसर, बारोब, बाइख्तियार और दौलतमंद लोगों के रवैये के उलट था। लेकिन यीशु को देखने की आरज़ू में उसने दुनिया के लोगों की रवायतों की परवाह नहीं की। आए हम भी इस नए साल में ज़काई की मानिंद बने, हर रोज खुदावंद यीशु मसीह को देखने के तालिब हो। अपनी निगाहें, अपनी आंखें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की जानिब लगाकर उसको तकते रहे, जिसने उस खुशी की खातिर जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। तो अगर हमारी नजात के लिए यीशु मसीह ने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, सलीब का दुख अपने ऊपर ले लिया, इस इक्तबास में ज़काई ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की और यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। तो आए हम भी यीशु मसीह को देखने के लिए, उसके दीदार के तालिब होने के लिए इस दुनिया की किसी शायद, किसी रुकावट, किसी उलझन और किसी मुश्किल की परवाह ना करें, बल्कि तमाम रुकावटें अबूर करते हुए, तमाम बैरियर अपनी राह से हटाते हुए यीशु मसीह को देखने की कोशिश में लगे रहे। उसके तालिब हों, उसके जलाली चेहरे के तलबगार हों। कैसे हम यीशु को देख सकते हैं? बाकायदगी से दुआ करने के वसीले से, रोजाना खुदा का कलाम पढ़ने के जरिए से, हर इतवार अपने खानदान समेत मसीह के रूहानी खानदान कलीसिया में इबादत में शरीक होकर, हर महीने कम अज कम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दायकी देकर और खुद को मुकम्मल तौर पर अपनी ख्वाहिशों, इरादों और मंसूबों और कामों को यीशु के ताबे करके, फिर हम देखते हैं यहां ये जो गूलर का दरख्त है, ये हमारे मुल्क के एतबार से समझ लो बोर्ड दा दरख्त नहीं जिवें हुंदा शाहबलूत, ये ऐसे ही था। ये इतना ऊंचा नहीं होता, लेकिन ये छतरी की तरह, बड़ी वड्डी छतरी की तरह फैलिया हुंदा, थल्लों इन्ना उच्चा नहीं हुंदा ते बड़ी आसानी दे नाल एदी टहनियां ते चढ़िया जा सकदा है। ज़काई वहां पर सिकेमोर ट्री, गूलर के दरख्त पर जो एक बोर्ड, एक शाहबलूत की मानिंद है, चढ़ गया।
क्योंकि वो जानता था यीशु इसी राह से जा रहा है। और जो यीशु को देखने के तालिब होते हैं, जो इब्ने खुदा के चेहरा मुबारक के दीदार के आरज़ूमंद होते हैं, हमारा खुदावंद उन्हें मायूस नहीं करता। वो मसीह की जानिब एक कदम बढ़ाते हैं, यीशु मसीह ओना वल 10 कदम वधांदा है। ज़काई सिर्फ यीशु मसीह नूं वेखना चाहता है। आयत नंबर 5 च लिखिया है, यीशु मसीह ओदे वल निगाह करदे ने और वो कहंदे ने, यार मैं ते तेरे घर जाना और रहना चाहना। आप यीशु को देखने के तलबगार हो, वो आपकी जिंदगी के घर में सुकूनत इख्तियार कर लेगा। आपके रिस्पॉन्स से कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्स वो देगा। यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ ज़काई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हुण गौर करो, बड़ी अहम गल है। यहूदी कल्चर च ਇਹ रवायत नहीं सी कि इंसान अपने आप नूं ही किसी दा मेहमान बना ले। पहला दावत मिलना जरूरी सी कि साडे घर आओ, ते फिर लोकी किसी दे घर जांदे सन। लेकिन यीशु मसीह यहूदी कल्चर की परवाह नहीं करता। जब यीशु मसीह ज़काई की ख्वाहिश और तजस्सुस को देखता है, तो यहूदी सकाफत के उलट यीशु मसीह खुद ही फरमा देता है कि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और पता है, नए साल में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज यीशु मसीह हमारे दिलों के घरों पर भी दस्तक दे रहा है और हमें ये पैगाम दे रहा है, ये पैगाम कि मुझे तेरे घर रहना जरूर है। मैं तेरी जिंदगी के घर में, मैं तेरे दिल के घर में, मैं तेरी कलीसिया के घर में रहना चाहता हूं। आए आज ज़काई की मानिंद अपने घर का दरवाजा यीशु बादशाह और नजात दहिंदा के लिए खोल दें। और जब ज़काई ये सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और वो जल्दी से उतरकर खुशी से यीशु को अपने घर ले जाता है। आए हम भी खुशी से अपने दिलों के घर यीशु के लिए खोल दें। और फिर लिखा है, जदों लोकां ने वेख्या, आयत नंबर 7 ते लिखिया, वो बुड़ बुड़ करन डै पे। तुसी यीशु दे लई अपनी जिंदगी दा घर खोलो। लाजमी नहीं कि तोड़े आले दुआले दे लोग खुश होणगे। ओ शिकायतां करनगे, तनकीद करनगे, लान तान करनगे, मजाक उड़ानगे, ठट्ठे मारनगे। ज़काई के मामले में मतन हमें बताता है कि क्यों वो बुड़बुड़ाने यानी शिकायत करने लगे। इसलिए कि लिखा है, वो कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हां जा उतरा।
दुनिया इस गल तो नाराज है कि यीशु मसीह एक गुनाहगार दे घर चला गया है, ते यीशु मसीह दा जवाब है कि मैं ते आया ही गुनाहगारां दे लई आ, मेरे लिए नहीं, यीशु के लिए। खुलकर भरपूर जोरदार तालियां बजाएं। वो दुनिया गुनाहगारों से नफरत करती है, दुनिया गुनाहगारों को कमतर और हकीर समझती है, यीशु गुनाहगारों के लिए आया है। याद रखें, बाइबल की तालीम यह है कि गुनाह से नफरत और गुनाहगार से मोहब्बत, प्यार। हमने गुनाह से नफरत करने वाले और गुनाहगार से प्यार करने वाले बनना है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह गुनाह से इस कदर नफरत करता था और किनारा करता था कि उसने यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खड़े होकर ये ऐलान किया, ये दावा किया कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, और एक भी उसकी जानिब उंगली ना कर सका। लेकिन यही यीशु जो गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगारों से इस कदर प्यार करता है कि आसमान छोड़कर उनकी खातिर जमीन पर उतर आया और जमीन पर अपनी खिदमत के दौरान गुनाहगारों के घरों में जाता, उनके साथ उठता बैठता, उनके साथ खाता पीता, उनसे प्यार करता, और उस प्यार में, उस मोहब्बत में इस हद तक चला गया कि खुद को उनके गुनाहों की मुआफी और कफारे की खातिर सलीब पर कुर्बान कर दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर साबित कर दिया कि गुनाहगारों के गुनाहों की मुआफी का इंतजाम मुकम्मल हो गया है। हालेलुया। सो हमने यीशु की मानिंद ज़काई जैसे गुनाहगारों को, जो चोर है, धोखेबाज है, गरीबों पर जुल्म करता है, दूसरों की दौलत लूटता है, हमने इनसे प्यार करना है, इनके घरों में जाना है, नजात और तौबा की वहां मुनादी करनी है, मगर उनके गुनाह में शरीक नहीं होना। गुनाहगार दे नाल मुहब्बत दा मतलब, ओदे घर जान दा मतलब, ओदे नाल खान पीन दा मतलब, ओदे नाल उठन बैठन दा मतलब ए नहीं कि ओदे कम्मां च शरीक होना है, बल्कि यीशु क्या करता है, वो गुनाहगार के गुनाह में शरीक होने की बजाय उसको गुनाह की दलदल से निकाल कर खुदा की निजात में शरीक करता है। सो गुनाह से नफरत, गुनाहगार से प्यार। चर्च, कलीसिया इस साल ये तहैया कर ले कि हमने अपने इलाके के ज़काई तलाश करने हैं जो गुनाहगार हैं, लेकिन फिर उन गुनाहगारों को खुदावंद यीशु की निजात में लेकर आना है, और हमारी कलीसिया की तादाद इतनी बढ़ जाए कि हमें हर इतवार 2, 3 बल्कि 4 इबादतें करनी पड़े। हालेलुया।
تو ایک کام کلا پادری صاحب نہیں کر سکتے. میری بہنوں بھائیوں آپ سب نے اس میں مدد کرنی ہے. یہ لوکا کی انجیل میں ہمیں بار بار ذکر ملتا ہے. لوکا 5:30 میں، لوکا 15:2 میں، کہ فریسی یسوع پر تنقید کرتے کہ یہ گناہ گاروں کے ہاں جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. اور فریسی اس زمانے میں اس قدر خود راست بنے ہوئے تھے کہ وہ گناہ گاروں کے گھروں میں نہیں جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ شرعی طور پر پاک بھی ہیں یا نہیں، یہ مذہبی طور پر راست بھی ہیں کہ نہیں. اور انہوں نے تو اپنے کھانے پر، اپنی خوراک پر دائیکی بھی نہیں دی، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے. لیکن جب یسوع کسی کے گھر اترتا ہے تو زکائی کی مانند اس کو ایسا تبدیل کرتا ہے کہ وہ آدمی صرف اپنی خوراک اور اپنے مال پر ہی دائیکی نہیں، بلکہ اپنی ساری زندگی، اپنا آپ اور اپنا سب کچھ یسوع کے لیے نچھاور کر دیتا ہے. سو جب یسوع زکائی کے گھر جاتا ہے تو لکھا ہے زکائی کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی، یکسر تبدیلی، ریڈیکل چینج، اٹر ٹرانسفارمیشن، کمپلیٹ چینج آتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ زکائی کہتا ہے خداوند، وہ یسوع کو مالک مانتا ہے، کہتا ہے اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. میری جنی بھی دولت ہے نا میرے کو، اودا 50% اودا ادھا میں غریباں نو دے دینا. اور اس کے بعد بھی اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ بچ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کا 4 گنا یعنی 20% میں ان کو جن سے میں نے ناحق لیا ہے ادا کرتا ہوں. یہ بات اس نے احبار کی کتاب کے باب نمبر 5 آیت نمبر 16 اور گنتی کی کتاب کے باب نمبر 5 اور آیت نمبر 7 کے مطابق کی، جہاں حکم دیا گیا شریعت میں کہ اگر تم کسی کا نقصان کر دو تو جب اس کی تلافی کرو، ریسٹیٹیوشن، تو پھر 4 گنا جو ہے اس کو ادا کرو. اور غور کریں وہ اپنا 50% غریبوں کے لیے دینے کو تیار ہے. یہودی روایت میں یہ بات تھی کہ کم از کم اپنا 10% خدا کے لیے دے. اگر کوئی اپنا 20% خدا کے لیے دیتا ہے تو یہودی ربی کہتے تھے یہ بڑی ہی سخاوت اور فیاضی کی بات ہے. اور اگر کوئی 20% سے زیادہ دیتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو بڑی ہی خطرناک بات ہے، یہ اپنا اتنا زیادہ مال سخاوت میں دے رہا ہے. یہاں غور کریں زکائی جو ہے 50%، آدھا مال غریبوں کو دینے کے لیے تیار ہے. نکتہ یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع کو پال لینے کے بعد یہ جان گیا ہے کہ زکائی کی اصل دولت
उसका जमीनी माल नहीं है, बल्कि ज़काई को एक ऐसा खजाना मिल गया है, एक ऐसी दौलत मिल गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और उस दौलत का, उस खजाने का, उस माल का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। मैं आपको चर्च आज चैलेंज दूंगा कि इस नए साल में हर खानदान दायकीदे ने अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा कलीसिया में देने के लिए तैयार हो। और मैं बताता जाऊं, पादरी जमशेद आशक ने मैनू ये नहीं किया कि मैं तुहानू एक कलाम सुनावा। ये कलाम मुकद्दस में से बात निकली है, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं घरों कोई प्लान बना के आया सा, नहीं, ये लेट द बिब्लिकल टेक्स्ट स्पीक, खुदा के कलाम को, बाइबल के मतन को बोलने दो। कलाम यहां ज़काई की मिसाल देता है, वो 50% दे रहा है, फिर नुकसान की तलाफी के लिए वो 20% दे रहा है, ते असी यस्सू दे लई 10% भी नहीं दे सकते, जिसने अपना आप हमारे लिए दे दिया। और फिर हम आगे देखते हैं, जब वो ये करता है तो यीशु मसीह फरमाते हैं, आज इस घर में नजात आई है। क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं? ज़काई यीशु को अपनी जिंदगी और अपने घर में कबूल करता है, ईमान ले आता है, लेकिन ईमान ले आना काफी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी और तरजीहात तब्दील ना हो, आपकी तौबा बेकार है। अगर जिंदगी तब्दील ना हो ज़काई के इस अमल में कि जिनका पैसा उसने चोरी किया, जिनका पैसा उसने नाजायज हथियार लिया, ज़काई का ये अमल कि वो वापिस कर रहा है, वो तलाफी कर रहा है, वो लूटे हुए माल से ज्यादा दे रहा है, 4 गुना दे रहा है। जिदे को 5 रुपए ले ओनू 20 रुपए वापस करन दिया है। ये अमल इस बात का इजहार था कि उसकी जिंदगी तब्दील हो गई है। तौबा का फल और ईमान का नतीजा उसकी जिंदगी में नजर आ रहा है। तो तब यीशु मसीह फरमाते हैं, आज इस घर में नजात आई है। नजात के लिए यहां यूनानी लफ्ज सोटेरिया इस्तेमाल हुआ है, और सोटेरिया का मतलब है रिहाई। पहला ए लालच ते दौलत दी गुलामी च सी, ओदे तो एनू रिहाई मिल गई है, और होन एक कायनात दे खजानियां दे मालिक यीशु मसीह दी गुलामी च आ गया। ते यीशु जड़ा कायनात दे सारे खजानियां दा मालिक है, जदों असीं उहदे को आने आ ना, ओ फिर सानू ईमान दी दौलत देंदा है, ओ फिर सानू पाक रूह दा खजाना देंदा है, ओ फिर सानू कलाम दा खालस सोना देंदा है, ते ओ सानू हमेशा दी जिंदगी दे हीरियां दे नाल जड़ देंदा है। तोड़ा इलाका कोई बड़ा दौलतमंद इलाका नहीं, पर मेरियो भैनों मेरे भाइयों याद रखो, कदी अपने आप नू गरीब नहीं समझना। तुसी दुनिया दी नजर च हो सकदा माली तौर ते गरीब होवो, पर यीशु मसीह च तुसी खजानियां दे मालिक हो।
आपके पास नजात की दौलत, पाक रूह का खजाना, कलाम का कीमती और खालिस सोना और नजात का कीमती मोती और हीरा है। रिहाई उसे मिल गई है। फिर सोटेरिया का मतलब है तहफ्फुज। फिर यह भी है कि हिफाजत की जमानत, खतरे से महफूज किया जाना। और उस जमाने च ओ लफ्ज सोटेरिया नजात इस्तेमाल करते हैं जब कोई बड़ा लंबा सफर करके ना बाहिफाजत सलामती से अपने घर पहुंच जाता था तो कहते थे कि सोटेरिया, इसकी नजात हो गई है। हम भी इस दुनिया में मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल नया आसमान और नई जमीन है। सलीब पर अपनी जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर यीशु मसीह ने हमें यह जमानत दे दी है कि इस जमीन पर तुम्हारी जिंदगी का सफर कठिन है, मुश्किल है, मुसीबत वाला है, लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद यीशु आपके साथ है। वो सलामती से बाहिफाजत हमें नए आसमान और नई जमीन में हमारे आसमानी घर में पहुंचा देगा। और नए आसमान नई जमीन में न मातम होगा, न मौत, न आहो नाला, न दर्द, न शुगर, न जोड़ां दा दर्द। किसी ने कहा जोड़ां दा दर्द की हुंदा है? ਇਹ जोड़े ही जानते ने। ना उथे ब्लड प्रेशर। खुदावंद मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी आंखों के सारे आंसू पूंछ देगा और आपके सारे दुख दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि आप यीशु के नाम पर ईमान लाकर नजात पा गए हैं। खोल के यीशु नजात देने वाली तालियां। आपको सोटेरिया जहन्नुम के खतरे से तहफ्फुज मिल गया है। नजात की है। लोग की पुछदे ने नजात की है। नजात यीशु मसीह है। जो जिसको यीशु मिल गया उसको नजात मिल गई। जकाई की यहां यीशु से मुलाकात हो गई। जकाई को यीशु मिल गया, जकाई को नजात मिल गई। नजात कोई फलसफा नहीं, नजात कोई बड़ा मुश्किल नजरिया नहीं, नजात कोई बड़ा पेचीदा फार्मूला नहीं। नजात हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। अमाल 4:12 में लिखा है कि आसमान के तले कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से नजात हो सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के। हालेलुया। जब हम यीशु पर ईमान लाए हमने नजात पा ली। हमने नजात पा ली है। नजात एक वाकया है। जस्टिफिकेशन, रास्तबाज ठहराया जाना। नजात रोजमर्रा का एक अमल है। हम नजात पा रहे हैं। सैंक्टिफिकेशन, तकदीस किया जाना। हर रोज कलाम, रूह और मसीह के खून से पाक किया जाना और हम नजात पा लेंगे।
नजात हमारी मंजिल है। जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, ग्लोरिफिकेशन, जलाली बनाया जाना। जिस तरह यीशु मसीह जलाली है, जलाली और गैर फानी बदन के साथ जिंदा हुआ और जिंदा है और जिंदा रहेगा, आप और मैं भी यीशु की मानिंद गैर फानी बदन के साथ जलाली बनाए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में नजात आई है इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। यहूदियों का, कईयों का ख्याल ये था कि जकाई जैसे गुनहगार खुदा की नजात से महरूम हो गए हैं, लेकिन यीशु मसीह बता रहे हैं कि अब्राहम तमाम ईमानदारों का बाप है। जकाई मुझ पर ईमान ले आया है, अब जकाई भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, खुद को बागे अदन में दरख्त के पत्तों में छुपाया, खुदा बागे अदन में ढूंढता हुआ आया और पुकार कर कहा, ऐ आदम तू कहां है? वही खुदा यीशु मसीह की सूरत में जमीन पर उतर आया, गुनाहगार इंसान को, खोए हुए इंसान को ढूंढता है और फरमाता है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। क्या आपने अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु के नाम पर ईमान लाकर नजात पाली है? रूह, बदन और जान की शिफा, बहाली और भलाई का तजर्बा कर लिया है। और अगर ऐसा हो चुका है तो हर रोज वफादारी और फर्माबरदारी में उसके पीछे चलकर अपनी नजात का काम करते जा रहे हैं। हमारी नजात के लिए काम यीशु मसीह ने कर दिया है। हमने नजात के लिए काम नहीं करना, वो यीशु मसीह ने कर दिया है। हमने नजात का काम करना है, यानी हर रोज उसके पीछे वफादारी से चलना है। ये फिलिपियों 2 बाब की आयत नंबर 12 है। आइए अपने सर झुकाएं।